Dear friends, welcome again in Education and Information. Look at this picture about data. Whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. हम जो भी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट के ऊपर करते हैं, अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर करते हैं, वो समवेयर रिकॉर्डेड होती है, उसको मोनिटाइज भी किया जाता है और उसको एनालाइज भी किया जाता है, वेदर इट इज़ फेसबुक हो, यूट्यूब हो या व्हाट्सअप हो. देखो, द सेम, सपोज you are looking something in Amazon or Google, you just go again to that website, you will see related that there will be images. Just there you can take example of YouTube. While searching any videos about the YouTube, the next time you will see the related keyword, related same video, more videos are already there, you have to just search it, and this is what the data, how it is recorded, why it is the first. वो हमें ऑप्शंस क्यों देता है. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ फेसबुक पे हमने एक पोस्ट को लाइक किया तो नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि उसके रिलेटेड बहुत सारे आपको पोस्ट आते जाएंगे. सेम अबाउट द व्हाट्सअप. एंड नाउ सी, वेरी फेमस अबाउट अमेजॉन एंड गूगल. यस, हो रहा है, बिलियनियर हो रहा है. कैसे हो रहा है? because of this data, because of this big data, because going from big data to big insight to big revenue. क्योंकि बिग डेटा से क्या हो जाता है, बिग इंसाइट्स मिलती है. इंसाइट्स क्या है मैं आपको बताऊंगी, एंड उससे हमें बिग रिवेन्यू भी मिलता है. ओके, नाउ लेट्स स्टूडेंट वी लर्न अबाउट द बिग डेटा, big insight. Just see here, people get information from various sources. Can you name a few? Various sources information मिल जाती है. Source of information as we know, Google, Facebook, Instagram, Twitter, web pages, website, databases, blogs, media, internet, मैगजीन्स. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, उसको हम डेटा कहते हैं. And now let's learn about 1.4 Standard 12 English Big Data, Big Insight. Now let's learn what is big data. Big data is the record of millions of people, all from different sources. For example, web, sales, customer, contact center, social media, mobile data and so on. बिग डेटा इज़ रिकॉर्ड ऑफ मिलियंस पीपल. इसमें मिलियंस पीपल का रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि अब जो भी कुछ काम कर रहे हो, जो भी सर्च कर रहे हो, वो समवेयर इट इज़ रिकॉर्डेड, और उसका यूज़ करके जो मीडियाज़ है, ये सोशल वेबसाइट है, उसका यूज़ करके उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करती है. Now let's learn in detail about big data. Big data analytics is the complex process of examining large and varied data sets. Big complex process है. Sometimes somebody is nearby 18 years, so that he will the search for the games, he will search for something YouTube related to the education, related to the habits, or something. Your mother, what she will search in YouTube or Facebook, she will search something kind of cooking recipes and all. अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, जो हम बिग डेटा जो भी सर्च करते हैं उससे एनालिटिक्स करके नेक्स्ट टाइम उसी यूज़र को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन पहुंचाई मिल जाता है. एंड व्हाट इज़ इनसाइड द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग. जो भी आप सर्च कर रहे हो उसको आपको एग्जैक्टली आपको उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, बिकॉज ऑफ समवेयर स्टोर होता है वो इनसाइट की. बिग डेटा फीचर्स क्या है? इजी टू ऑब्टेन. जो भी इंफॉर्मेशन है आप इजीली सर्च करके गूगल से आप ऑब्टेन कर सकते हो. जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप तुरंत, आपको 1 मिनट में आपके स्क्रीन के ऊपर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आपको मिल जाती है. सेकंड है मैसिव चैलेंजेस टू करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. मैसिव मीन्स सपोज just on YouTube just search computer, you will get the much more videos, information regarding the computer uses, how to use and all, much more apps and all. You will get the much more, means any word related, any keyword you will just put in the search box, you will get much more information about the certain word, because it's massive, huge and
चैलेंजेस टू करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बहुत सारा स्टोर हो रहा है समवेयर, जो भी आप सर्च कर रहे हो, जो भी कोई वहाँ पे अपलोड कर रहा है, तो और ये इसे चैलेंज बन रहा है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट फीचर है बिग डेटा एनालिटिक्स यूज टू गिव इनसाइट दैट वेर प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, जो भी आपके इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम मिल जाती है, उसका एक एनालिटिक्स हो जाता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट यूजेज ऑफ बिग डेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आपके पास बहुत सारा डेटा है, अभी समवेयर फीड हो रहा है, लेकिन उसका एग्जैक्टली यूज़ क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड व्हाट इज़ यूज ऑफ द बिग डेटा फॉर द स्टूडेंट? डू यू थिंक बिग डेटा विल हेल्प ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट? अभी स्टूडेंट को क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है? एज वी नो नाउ अ डे ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन. Via online classes we come to know various platform of this social media, and due to this data analytic, due to this internet, now at home we able to learn much more thing in this corona pandemic. And big data helps in guiding the student regarding the best career for him based on his mental makeup and abilities. बहुत सारे ऐप्स है उसमें, उसके ऊपर आपका स्टैटिस्टिक आ जाता है, आपका एज, आपका इंटरेस्ट बताने के बाद, उसमें फीड करने के बाद आपका फ्यूचर किस में इंटरेस्ट है, किस में आप अच्छा कर सकते हो, उस एक काइंड ऑफ का एक साइकोलॉजिकल ग्राफ आपके सामने आ जाता है। सो इट्स हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट। इंडस्ट्रियल एंड कंपनी डेटा इंक्रीजिंग। इंडस्ट्री है और कंपनी का डेटा है, वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। वॉल्यूम जो उसका साइज़ है दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। वेरिएशन में बहुत सारा वेरिएशन हो रहा है, आज थोड़ा नया उसमें रिसर्च हो रहा है। वेलोसिटी, उसका स्पीड भी ज़्यादा और वाइडली वो ये हो रहा है। वेरासिटी डिफरेंट अलग अलग काइंड्स का होने के बाद में उसमें क्या है, इंसाइट है, उसमें सिक्योरिटी आपको मिल रही है जो भी आप स्टोर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल, यू कैन यूज़ द पासवर्ड एंड यू कैन कीप इट सेफ फॉर योर सेल्फ एंड वैल्यू, और इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एज वी नो द हाउ ऑनलाइन क्लासेस इज बिकम मोर यूजफुल, more popular nowadays. This is just example I am telling as we are running with this. And now we'll learn about the uses of big data. Yes, big data is useful for the location tracking, understanding weather pattern, healthcare industries, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग में बिग डेटा का यूज़ होता है। स्पोर्ट्स में तो बिग डेटा का यूज़ होता ही होता है। फॉर स्पोर्ट्स चैनल एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बिग डेटा का यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट मीडिया में भी यूज़ होता है। एंड द लास्ट, एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बिग डेटा बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है। वी विल लर्न इन बिटवीन वन बाय वन इन डिटेल। यूजेस ऑफ बिग डेटा, लोकेशन ट्रैकिंग। फर्स्ट यूज़ है बिग डेटा का लोकेशन ट्रैकिंग, जो अभी हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। आप गूगल मैप के हिसाब से सकते हो। सो लोकेशन ट्रैकिंग, इन व्हाट वे वी कैन डू टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। ये क्यों करें, एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने के लिए हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। टू गेट रियल टाइम डेटा अबाउट ट्रैफिक कॉन्गेशन ऑन द पर्टिकुलर रूट। सपोज इस रूट से आपको जाना है तो उसमें से कितना ट्रैफिक रहेगा, वो सब आपको गूगल मैप के हिसाब से वजह से मिल जाता है। टू गेट इन्फॉर्मेशन इफ़ द रूट इज़ क्लोज और इफ़ इट इज़ वन वे रूट, ये वन वे रूट है या बंद हो गया है, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन लोकेशन ट्रैकिंग की वजह से मिल जाती है। टू अंडरस्टैंड एक्सीडेंट प्रोन एरिया, सम एरियाज आर एक्सीडेंट प्रोन, सो उसकी भी हमें पता चलता है। टू हेल्प इन प्लानिंग रूट फॉर ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन, प्लानिंग के लिए, फ्यूचर के लिए जाना है, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, वो भी हम लोकेशन ट्रैकिंग के माध्यम से देख सकते हैं। टू ट्रैक आवर ऑर्डर स्टेटस, इट्स कंडीशंस ऑनलाइन। सपोज यू ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन, सो व्हेन यू विल गेट वेदर इट इज़ शिप्ड, वहाँ कहाँ पे आ गया है, तो आप वो सब भी ट्रैक कर सकते हो। टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का रिस्क रहता था पहले, तो अभी वो दिन ब दिन लोकेशन ट्रैकिंग की वजह से कम हो रहा है। एंड द लास्ट, टू इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी, जो स्पीड है वो किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, जो भी आपका खुद का बिजनेस हो या आपको मिलने वाला हो, तो उसके हिसाब से हमें वो समझ में आ जाता है। सेकेंड यूज़ ऑफ बिग डेटा इज़ अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स। ओके, टू अंडरस्टैंड वेदर एंड टू गेट हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। टू अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न, डिफरेंट वेदर कैसा है, बारिश कभी होने वाली है उसके बारे में। टू गिव वार्निंग ऑफ
इम्पेंडिंग नेचुरल कैलामिटीज़, कभी नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पर्सनस, इसके लिए भी यूज़फुल है। टू हेल्प इन नेसेसरी प्रिपरेशन टू कॉम्बैट द नेचुरल कैलामिटी, तो इसके लिए कौन सा भी कैलामिटी आने वाली है तो उसके लिए हम नेसेसरी प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए वो भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट, टू स्टडी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन इट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ ऑल वर्ल्ड इज़ फेसिंग, तो उसकी वजह से क्या करना चाहिए फ्यूचर के लिए उसका भी हमें स्टैटिस्टिक आ जाता है। एंड द नेक्स्ट, टू प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कितना नेचुरल रिसोर्सेज है अभी हमारे पास, उसके लिए अभी बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब इंटरप्रिटेशन हम ये डेटा की वजह से कर सकते हैं। द नेक्स्ट, वेदर सैटेलाइट, हाउ टू सैटेलाइट गेट्स एनर्जी, वेदर फोरकास्टिंग, कभी है कभी सनी डेज है, कभी ज़्यादा हॉट है, कभी ये है, ये सब हमें एक ही दिन में पूरे 8 दिन का हम एक आउटलुक देख सकते हैं। Next, use of big data healthcare industry, which is very important nowadays to provide a personalized individual medical feedback. बिग डेटा की वजह से क्या है, पर्सनलाइज और मेडिकल फीडबैक आपको पता चलता है। या फॉर एग्जांपल हार्ट बीट हो, या अभी जो डिसीजेस दिन ब दिन बढ़ रहा है, अबाउट डायबिटीज़, अबाउट हार्ट अटैक, जो सीवियर डिसीजेस है उसके लिए पर्सनलाइज और इंडिविजुअल मेडिकल फीडबैक आपको बिग डेटा की वजह से मिल रहा है। टू हैव अ बेटर डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग। डायग्नोसिस किसी भी आपका डिसीज़ हो या किसी भी ड्रग है जो आप ले रहे हो, ड्रग इट इज़ काइंड ऑफ एनी मेडिसिन हो या ड्रग आप ले रहे हो, उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। टू बेटर एनालाइज द हेल्थ ऑफ द पर्सन बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, आपका जो पास्ट डेटा है, पास्ट आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से आपका जो हेल्थ अभी कैसा है वो भी आप देख सकते हो। टू सिग्निफाई, रिड्यूस एंड गेट राइड ऑफ द अननेसेसरी गेस वर्क, और जो अननेसेसरी गेस वर्क है या बाद में आने वाले हमारे हेल्थ के लिए इशू है वो हम कम करने के लिए पहले हेल्थ चेकअप के हिसाब से वो कम कर सकते हैं। टू गेट हेल्प इन मॉनिटरिंग आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक एंड डिसीजेस, मॉनिटरिंग पहले हेल्थ चेकअप, अभी जो मेडिकल इंश्योरेंस में हेल्थ चेकअप फ्री दे रहे हैं वो लोग, तो क्यों दे रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आने के लिए जो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में वो कम करने के लिए हम पहले ही उसको खुद को उससे बचा सकते हैं। टू लोकेट एंड मॉनिटर अफेक्टेड एरियाज एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन, मे बी हार्ट का पेशेंट हो या कैंसर का पेशेंट हो, उसका जहाँ पे भी अफेक्टेड हुआ है जो एरिया, तो उसको निकाल के, सपोज हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आने वाला है या आके गया हो तो उसका ब्लॉकेज निकाल के उसको नेसेसरी प्रिकॉशन देके फ्यूचर के आने वाली कैलेमिटी से बचाया जा सकता है। टू हेल्प फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू प्रमोट रिसर्च इन द पर्टिकुलर एरिया, फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है उनके लिए रिगार्डिंग टू हेल्थ ऑफ सर्टन पर्टिकुलर एरिया, the problem they are facing, the body they are able to educate with the environment, उसके हिसाब से वो रिसर्च के लिए भी यूज़फुल होता है। एंड द लास्ट, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड दस प्रोवाइड सोल्यूशन, जो भी एग्जैक्टली पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्यूशन मिलने के लिए बिग डेटा बहुत यूज़फुल है। उसका बहुत यूज़फुल एक एग्जांपल है कि जो हम आइज़ वगैरह गूगल ग्लास है वो यूज़ करते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे ऐप है, उसके हिसाब से आप खुद का अपने दिन में कितना कितना स्टेप्स किया, कितना मीन्स आप क्या क्या कर रहे हो, आपका सब मॉनिटर होता है। अभी जो फर्स्ट इसके रिलेटेड बहुत यूज़फुल था, नाइकी ब्रांड है शूज़ का, उसमें भी एक इस तरह से एक सॉफ्टवेयर है कि आप जो भी दिन ब दिन कर रहे हो, मीन्स आपका पल्स रेट कितना है, हार्ट रेट कितना है, वो सब पता चलता है। एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए तो बहुत यूज़फुल है ये सब मॉनिटर करने के लिए। आपका थर्मामीटर क्या है, आपका सर्टन टाइम में ऑक्सीजन लेवल क्या है, वो सब यूज़ करने के लिए बिग डेटा का बहुत हेल्पफुल होता है। एज नाउ दिस इज़ एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्ट नाउ प्रमोटेड ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप को आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको बताइए कि इस ऐप से आप आपके मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद इसके आपको सब उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके बाजू में आप जिनसे मिले थे वेदर ही इज़ अफेक्टेड बाय कोरोना पेंडेमिक और नॉट। एंड द नेक्स्ट, दीज आर द सिग्नल्स एंड द नेक्स्ट यूजफुल ऑफ बिग डेटा इज़ बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रैकिंग। फोर्थ वन, बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग में बिग डेटा किस तरह से यूज़फुल है। फर्स्ट, टू स्टडी इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द पीपल, जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कौन कौन से फील्ड में कर रहे हैं उसको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड वन, टू इनेबल बैंक
एंड फाइनेंस कंपनीज टू कम विथ सुटेबल प्लान। जो भी बैंक है या फाइनेंस कंपनीज है उसको सुटेबल टू देयर कस्टमर प्लान बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। टू प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स एंड कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, रिचुअल ऑफ ऑडिट ट्रायल। ये तो आपको पता है कि फ्रॉड वगैरह वो बहुत सारा चलता है, उससे बचने के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। टू हेल्प इन हैंडलिंग इश्यूज़ रिलेटेड टू मिस ट्रांजेक्शंस एंड फेल्यूर इन नेट बैंकिंग। जो भी मिस ट्रांजेक्शंस होता है या कभी कभी नेट बैंकिंग में फेल्यूर आ जाता है उसको रिजॉल्व करने के लिए डेटा बहुत यूज़फुल है। टू प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन द सर्वर्स दस हेल्प्स इन द बैंक मैनेज ट्रांजेक्शंस। बैंक्स को मैनेज ट्रांजेक्शन करने के लिए बहुत यूज़फुल है। इज़ यूज़फुल बाय सेक टू मॉनिटर SEC to monitor possible illegal trades and suspicious activities and even frauds। सिक्योरिटी एक्सचेंज का जो ये गवर्नमेंट का ये है उनके बहुत यूज़फुल होता है वो ये करने के लिए। टू यूज़ बाय SEC to monitor possible illegal trades and suspicious activities and even fraud। जो भी फ्रॉड चल रहा है उसको ध्यान रखने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। द नेक्स्ट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग यूजेस बिग डेटा एंड अल्गोरिदम्स टू मेक ट्रेडिंग सेलिंग बाइंग डिसीजन। जो सेलिंग बाइंग का डिसीजन है बैंक में या सपोज सेंसेक्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेडिक्ट करने के लिए ये डेटा बहुत यूज़फुल होता है। हैज़ हेल्प्ड इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड दिस बिकॉज ऑफ नेक्स्ट यूजेज ऑफ डेटा इज इन स्पोर्ट्स। Okay, enables a sport person to study his performance and of the other players worldwide। वर्ल्डवाइड में स्पोर्ट्स बहुत फेमस गेम है, as we know it's famous of ours also। सो स्पोर्ट्समैन को खुद का परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए या दूसरों का परफॉर्मेंस देख के किस तरह से मैं खुद में ज़्यादा अच्छी तरह से खेल सकता वो करने के लिए भी ये डेटा बहुत यूज़फुल होता है। सेकंड, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस। खुद का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते करते डेटा की मदद से टीम का भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड वन, द डेटा कमिंग फ्रॉम सेंसर हेल्प टू अंडरस्टैंड द गेम फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। जो डेटा सेंसर से जो मिलता है तो अंडरस्टैंड की गेम है, क्वार्टर्स है, सब किस तरह से खेला जाता है, किसकी कौन से टीम की क्या स्ट्रैटेजी होती है वो समझ में आता है। एंड द लास्ट, टू अंडरस्टैंड द फील्ड कंडीशंस वेदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जैसे कि फील्ड पे खेलते समय वेदर है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, वो सब समझने के लिए फॉर बेटरमेंट के लिए स्पोर्ट्स फील्ड में भी बिग डेटा का बहुत यूज़ होता है। जैसे कि स्मार्ट वॉच हम जो आईफोन से कनेक्टेड होता है या जो मेनी वेरियस ब्रांड का भी अभी आजकल मिलता है उसके हिसाब से भी हम वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स में तो बहुत यूज़फुल है अबाउट द बिग डेटा। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग। To keep a track to the user behavior, transaction data collected by Facebook, Google, Twitter, etc. Now see to keep a track। जिस तरह से मैंने फर्स्ट ही आपको बताया कि आप कौन सा भी एक गूगल पे या फेसबुक पे जो भी आप सर्च करते हो नेक्स्ट टाइम आपको उसी टाइप का सर्च मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यूर गूगल रिगार्डिंग द hair conditioner or hair shampoo, next time you will get lots of ads or lots of product related to this। and so advertising के लिए कीप ट्रैकिंग के लिए किस तरह के कस्टमर्स है जो आपको क्या चाहिए वो गूगल पे फेसबुक पे डेटा के हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंड है हेल्प्स एडवर्टाइज़र टू रन टारगेटेड कैंपेन। जैसे कि अभी कौन सा भी मीन सर्टन एज ग्रुप के लिए अलग रिक्वायरमेंट रहती है, सर्टन एज ग्रुप के लिए अलग रिक्वायरमेंट रहती है। सो कौन सा एज ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए ये डेटा बहुत यूज़फुल होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। एंड नेक्स्ट वन, टू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटेंट, वेबसाइट यूजिट्स, इंटरेस्ट, जॉब रोल्स, डेमोग्राफिक्स एट्सेट्रा। जिस तरह से टारगेट पीपल है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वैन यू विल गो टू द यूट्यूब पे आपने सडनली यू आर सर्चिंग सॉन्ग और यू आर सर्चिंग काइंड ऑफ एनी मोटिवेशन फॉर लाइफ एंड ऑल। सो उस टाइप का ही आपको वो समझ में आता है कि नेक्स्ट टाइम की ये एज ग्रुप वाले यूट्यूब ये है वो यही देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम ये भी डेमोग्राफिक एक ग्राफ देख सकते हैं।
एंड द नेक्स्ट वन, शो डिफरेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन क्लिक्स एंड फॉर लीड्स पोटेंशियल कस्टमर। जो भी है एक क्लिक पे ही आपको जो भी कुछ चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बहुत हेल्प होती है डेटा की मदद से। एंड नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। To keep a track of the user behavior, transaction data collected by Facebook, Google, Twitter etc. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं या यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे सर्च करें, उसके हिसाब से हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं, फेसबुक को देते हैं, गूगल को देते हैं कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, और उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग हमें मिलती है। हेल्प्स एडवर्टाइज़र टू रन टारगेटेड कैंपेन। जो भी टारगेटेड कैंपेन है, फॉर एग्जांपल दे वांट टू एनर्जी बूस्टर फॉर दोज पीपल आर गोइंग फॉर द जिम, तो उनके लिए तो वो कौन से वो कैसे उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे ताकि जो भी ये है फेसबुक यूज़र है वो जिम का कुछ वीडियो देखते हो, तो ये टाइप का एक स्क्रूटिनिटी टू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटेंट, वेबसाइट विजिट, इंटरेस्ट, जॉब रोल्स, डेमोग्राफिक एट्सेट्रा। जो भी टारगेट है, जो भी पीपल्स है, जो अब गूगल पे जो भी सर्च करते हो उस टाइप के या आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका जॉब रोल क्या है, आप क्या सर्च करते हो, आपका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आपको वो सजेस्टिव में एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ जाती है। And the last shows different result based on clicks for the leads potential customers, and different result हमको एक क्लिक में ही मिल जाता है, और उनको भी एडवर्टाइज़र को भी ये बहुत यूज़फुल हो जाता है फॉर देयर बेटर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, जो बिग डेटा से बहुत प्रभावित है। To focus on targeting people based on their past views with the right content at the right time. Okay, जो भी टारगेटेड पीपल है बेस्ड ऑन पास्ट व्यू, जो भी आप पास्ट में देखते हो, जो भी सर्च करते हो, जो भी आपने मूवीज़ हो या कुछ भी देखा हो, तो उसके रिलेटेड वो राइट कंटेंट एट द राइट टाइम को आपको नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसी वेबसाइट पे जाओगे तो वो एंटरटेनमेंट या मीडिया के बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट is used by TV broadcaster to show different advertisement and show as per the viewers database। और ये डेटा जो है, जो अवेलेबल होता है, जो भी हम इंटरनेट पे यूज़ वगैरह करते हैं, उसका यूज़ करके टीवी ब्रॉडकास्ट है या डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट है, उसका यूज़ करके वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है इज़ यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब एडवर्टाइजर्स एंड टीवी ब्रॉडकास्टर्स। नाउ एज वी नो नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज चलती है उनके लिए, यूट्यूबर्स के लिए, यूट्यूब पे जो भी आप सर्च करते हो फॉर द एडवर्टाइज़र के लिए, टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया के माध्यम से जो भी डेटा अवेलेबल होता है उसका बहुत हेल्प होती है। And fourth one, allow better revenue for the ads and provides more engaging user experience. And the last, education industry also much more impact due to this data, due to this big data. As we know, due to this corona pandemic, we are also having online classes, work from home due to this big data only. फर्स्ट वन, कैन स्टडी रिजल्ट टू नो प्रोग्रेस एंड दस कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस के लिए, फॉर बेटरमेंट के लिए उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो देखने के लिए डेटा बहुत यूज़फुल होता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन करियर गाइडेंस टेकिंग इनटू अकाउंट हिज मेंटल मेकअप एंड एबिलिटी। जो भी करियर करना हो उसके रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपको बिग डेटा के हिसाब से मिल जाते हैं। हेल्प्स इन द ऑपरेशनल इफ़ेक्टिवनेस एंड वर्किंग ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उसको या बच्चों को अच्छी तरह से बेटर एजुकेशन देने के लिए भी ये डेटा बहुत यूज़फुल होता है। हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्चेस अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल फिनोमेना। जो भी जियोग्राफिकल फिनोमेना है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, करंट सिचुएशन है उसमें से मूव ऑन करने के लिए डेटा बहुत यूज़फुल होता है। आज वी नो नाउ डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन इंडस्ट्री इज़ बिकम वेरी पॉपुलर एंड उसके हिसाब से स्टूडेंट अपने को बहुत बेहतर बनाने का काम करते हैं। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी बच्चों लोगों के लिए एक कोडिंग एक सब्जेक्ट ही उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, ताकि आप खुद का एक ऐप बना सकते हो, खुद
लायबल हो सकते हो लोगों को जॉब देने के लिए। सो ये डेटा बहुत यूज़फुल होता है, नो मैटर एट विच एज यू आर। सो एजुकेशन इंडस्ट्री में भी डेटा बहुत हेल्पफुल होता है। दिस इज़ वॉट माई डियर फ्रेंड अबाउट बिग डेटा, बिग इनसाइट। बिग डेटा इज़ हेल्पफुल in short scientific researches for understanding geographical phenomena, helping in the smooth working government machinery, and it's a genie in our hand. Genie means whatever we wish you will get with a single click or single search. And next, big data lies in our hands to make the ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इट एंड बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अभी जो हमारे पास जो डेटा है उसका हम ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके, हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके, उसके ऊपर रिसर्च करके जो भी खुद के लिए यूज़फुल है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आवर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। सी यू।